सुकून मिलता है बुत खाने में। ये एक कविता है बापू। छोटा सा बच्चा हो जैसे कोई, बापू की सूरत लुभाए ऐसे, यूं मुस्कुराने का वो तरीका, कोई शरारत छुपाए जैसे। कहा था बापू ने हमसे बच्चों, बुरा न देखो बुरा सुनो मत, होते अभी वो तो कहते शायद, गलत बना दी मैंने कहावत। न जाने थे किस उधेड़ बुन में बापू ने जब ये रस्म बनाई, बुरा न बोलो सुनो न देखो, नहीं कहा मत करो बुराई। देखे ही नहीं बुरा अगर हम, बुराई भला मिटाएं कैसे, बिना कुछ सुने सदा चुप रहें, सितम जहां के घटाएं कैसे। May sound a little overwhelming going by the number of shows that I've written. Um, I've written more than 50 titles shows. Almost, I mean, a little more than 4,500 half-hour episodes. I was not a born writer. I still don't consider. Born writer is a big thing. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज भी। एक लाइन लिखने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। राइटिंग प्रोफेशनली मैंने शुरू की एडवर्टाइजिंग से, जो एडवर्टाइजिंग में कॉपी राइटिंग किया करता था पहले। कॉपी राइटिंग शुरुआत मैंने भोपाल में की थी, तो स्मॉल एजेंसी, मोस्टली केटरिंग टू प्रेस एड्स। चूंकि दैट वाज द नियरेस्ट कैपिटल सिटी फॉर मी एंड आई हैड फ्रेंड्स देयर, तो कॉलेज के बाद उस समय बूम था। दिस वाज अर्ली 90s, एडवर्टाइजिंग का एक बूम सा था। ओनिडा टीवी का एड सबको याद होगा उस जनरेशन के लोगों को। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का बहुत बूम था, तो I got attracted to it and started in Bhopal. छोटी सी एजेंसी थी। Actually, I helped somebody set up an agency. वो सेटअप होने के बाद then I shifted to Bombay after 2 years. अपने हक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हक से मांगो प्रिया को। अच्छी सेहत पे सबका हक है। सबका हक है। हक से मांगो प्रिया को। सभी को हक है अपनी मर्जी से जिए। An old school friend of mine, Ved Nair, he had done his engineering, diploma in engineering, and he was a good student. He was a very intelligent, very capable kind of. I had lost touch with him after school actually. Then I bumped into him. We were very good friends. He was a very good musically driven person. Instrument. Used to play mridangam, very trained mridangam player. And when I met him in Bombay after many years, he was struggling and he was trying to become a music director. And I saw his passion. That was one big reason that I actually quit my advertising. That motivated me to quit my not cushy, but at least I had a definite salary at the end of the month. I quit that. I wanted to pursue script writing. इसका एक sitcom आता था, situation comedy called कभी ये कभी वो. I never thought I could write comedy. I didn't even know, because we were new as strugglers in Bombay. I could not even afford a television at that time, so I didn't have a TV at home. So I didn't know about this show that they were making. But yes, they were looking for more writers. Situational comedies are mostly, although the same set of characters, central characters are there, you get different episodes written by different writers. So they were constantly on the lookout for new writers. So I got there, I found out about the show. They asked me to give ideas as to how. I gave some plot ideas. I didn't even know the whole process of how a script gets written. We didn't have Google and IMDb or internet references in those days. So, but it's all learning. I then started writing. In fact, the first episode that I wrote, and like I said, I didn't have a TV at home. I went to a friend's place who had a TV. I sat with his family and wanted to see
my name on the screen. It was a big high in those days. And then I saw my name, and then below my name there was I didn't know the technicalities also about story, screenplay, dialogue, and the three stages of script in those days. Saw in the credits, I saw my name. I was very happy, but below that I saw another name, and it said additional dialogue by so and so, and I was hurt. I thought I had given them a complete script, and why would they? And I actually didn't like the changes that the other additional dialogue writer had done to the. Probably it was good for the makers. From that day onwards, I made it a point to be there on the sets when my episodes would get shot. That's where I actually learned the craft of writing. Screenplay is about telling a story well, as in what some things of it are about how what to tell first, how to open a story, and how much to reveal when, and if there is a past story, when to open that, when all that. And dialogues is actually a screenplay. If in Hollywood terms, in world cinema, screenplay includes the spoken word as well, dialogue as well. But in India, we have this specialized thing. Screenplay is how a scene is constructed and how transition a scene, how a scene ends and flows into the next scene. All that is part of screenplay. Dialogues is purely character speak. What, how each character would say a certain thing, and sometimes a screenplay actually dictates to the dialogue writer as to what. Sometimes it is verbatim as has to be copied. Sometimes the words are so important that you cannot twist it. Sometimes the screenplay writer gives a gist of a conversation maybe, and how it is crafted between two people. It's up to the dialogue writer. That in Saya particularly, why I can even I'm a little proud of is because we did a lot of new things, which was it happened. Like for instance, we never throughout the. I mean, I started writing from the 42nd episode, and I wrote till 130, which was a big number in the weekdays of the weekly. So those many weeks. In the entire so many episodes, I never used a single moment where we had to use a voiceover for a character's thoughts. So it would come out from by the way they would behave. We never had to use flashbacks to remind the viewer of a certain thing, and still it was doing very well. I mean, in terms of viewership, it's like it was. It's a little funny if you look back now, but yeah. So Sony is a multinational company, and we said some politically incorrect things in that show about multinational companies. There was a phase in that story about India being a dumping ground for rejected goods and stuff like that. काव्या, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं होगी? तुम जानती हो तुम्हारे इस प्रोडक्ट की हार्मफुल साइड इफेक्ट्स की वजह से दूसरे देशों में इसे बैन किया गया है। तुम्हारी कंपनी इस बैन प्रोडक्ट को रीपैकेज करके हमारे देश में बेचने की कोशिश कर रही है। इसे थर्ड वर्ल्ड डंपिंग कहते हैं। फालतू की बातें मत कर तुम मुझसे। मुझे अच्छे तरह से मालूम है कि एक इंटरनेशनली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं। काम्या, तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्या तुमने इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाई करी है, स्टडी किया है इसके बारे में? तुमने पढ़ा है? तुमने उसके बारे में स्टडी की है? तो फिर फालतू में सुधा की साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हें मालूम भी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? लेट 90s का सिटकॉम था हम सब एक है। कहानी तो ये थी कि देयर इज अ जॉइंट फैमिली जिसमें द हेड ऑफ द फैमिली, द मैन, द फादर is from Kashmir. He's a retired colonel. The mother, his wife, is from Kanyakumari, and they have three sons and a daughter. Each of the sons is married to a lady from a different state. Like पहली बहू घर की पंजाबन है, दूसरी बहू बंगाली है, तीसरी जो है गुजराती. बेटी stayed a single till the end of the show, I think.
एंड मेरा भिलाई वाला बैकग्राउंड ये है क्योंकि बैकग्राउंड तो नहीं, इट हेल्प मी राइट अ लिटिल विदाउट मच डिफिकल्टी बिकॉज भिलाई वाज अ स्मॉल कॉस्मोपॉलिटन place where people from a lot of different states would work for the steel plant which is there in Bhilai. And हमारे पड़ोस में सारे different states के लोग होते थे, तो सबका रहन सहन, सबकी बोली rather than भाषा, जिस तरह से वो हिंदी बोलते थे या हम भी बोलते थे, तो सब में एक certain nuances याद रह जाती है बचपन की, that helped. जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना भी मिस्टेक है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग है बोली सबकी, तरह तरह के सपने, छोटे मोटे झगड़े हैं पर आखिर है तो अपने। थोड़ा लेना देना, थोड़ा गिव एंड टेक है, राइट? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। Okay, I'll come directly to the point which I feel bad about is नियत में कमी है लोगों की. People are out to make, people are not sincere anymore. Most people, at least most people. There are very good people in our line of work. Actually, there are more good people, but they're probably helpless. There's a system. It's a failure of the system. Honestly, I may not be right again, but it is eventually कॉमर्स आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम से, ये कहानियां बदल जाती हैं, या ये अपने आप में एक नहीं दो तीन प्रॉब्लम है उसके अंदर भी. तो किसी एक शो का अगर हम एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल अगर लें कि एक शो जिस भी वजह से अच्छा बना हो या हर चीज और चल गया, उसके लिए ओरिजिनली हमने अगर सोचा हुआ है कि ये इसको साल भर चलाएंगे, साल भर की कहानी हमारे पास है, लेकिन वो इतना अच्छा चल जाता है, मतलब चलने से मेरा मतलब नंबर से है कि टीआरपी व्यूअर्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एड्स मिल रहा है जिससे कॉमर्स, जिससे पूरा बिजनेस चलता है. तो कहानी खत्म होने के बाद, मानिए कि जनवरी में हमने कहानी शुरू की, दिसंबर में जो इंटेंडेड कहानी थी वो खत्म होने को आई, लेकिन इतना अच्छा चल रहा है कि nobody has the guts to rock the boat. उसको हटा के अगली चीज लाएंगे, वो क्या चलेगा, क्या वो इतना इनकम ला पाएगा हमारे, because a lot of people are dependent on that, other than the companies themselves there are individuals involved. So somewhere that is one of the biggest things that goes haywire, because फिर उसको extend करने के चक्कर में बहुत गड़बड़. Some stories need to stop there. That we all agree. We always say that कि यार ये क्यों खींच रहे हैं, तो बट वो कॉमर्स की वजह से, और फिर कई बार एक्सटेंशन भी चल जाता है वो, लेकिन कहानी बदल भी गई हो, कुछ नया कर दिया उन्होंने, कुछ गिमिक्स कर दी, कैरेक्टर बदल दिया, लीप हो जाता है कई बार कहानियों में कि 10 साल बाद ये कैरेक्टर, एक्टर्स ने मना कर दिया कि हम बूढ़ों का रोल नहीं करेंगे, तो फिर कहानी कहीं और चली जाती है. तो ये भी होता है कई बार. तो इस तरह के अलग 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 बहुत कारण हैं, बट मोस्टली इट इज कॉमर्स एंड नियत की मैंने बात की पहले, तो इट इज अबाउट डिसीजन मेकर्स जो हैं, वो देयर इज नो वन पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजन. डेलीज का तौर मैं कहूँगा, केबीसी कौन बड़ेगा करोड़पति के साथ, जब क्योंकि बालाजी का शो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही शुरू हुआ, उसके बाद एक वो मार्केट खुल गया था, इन द सेंस व्यूअरशिप बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ satellite advancements and all. तो जो numbers, the TRPs would come from a different kind of viewership. तो उनको cater करने के इरादे से कई कई कहानियों का एक कहने का तरीका, कहानियों का कॉन्सेप्ट, हर चीज उनको cater करने के लिए रियलिज्म कहते हैं थोड़ा सा कम
होने लगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि एक कहते हैं एस्पिरेशनल वैल्यू, जैसे लोग हम सब पूछते हैं हमसे, कई बार कभी टीवी वालों से पूछा जाता है कि आप घरों में इतने अच्छे सजे संवरे क्यों रहते हैं लोग, घरों में तो जेवरात, ये सिल्क की साड़ियाँ, मतलब ये नहीं पहनते हैं लोग। तो इट इज थियरी ये है उसके पीछे कि लोग चाहते हैं, जो गरीब लोग देखते हैं जहां से नंबर्स आते हैं, जिनसे बिजनेस चलता है, जो लोग, उनको ये सब देखना अच्छा लगता है। सो उनको एंटरटेन करने का ये भी एक जरिया है। तो कहानियां भी कहीं ना कहीं उन्हीं को, मतलब थियोरेटिकली एटलीस्ट, हालांकि मैं नहीं मानता कि यही चीजें वो पसंद करेंगे, पर वो चूंकि कुछ एक तरह का या तीन चार तरह की कहानियां चल जाती हैं कभी कभी, तो ढर्रे में वो उसी इसमें सारे भेड़ की चाल कह लीजिए, तो वो सेफ्टी, अगेन वो सेफ्टी जोन और कमर्शियल रीजंस होती हैं कई बार। गुड बाय मिस लीला सलगांवकर। से मैं मार्केट ड्रिवन है 100%, 100% मार्केट ड्रिवन होना चाहिए भी, लेकिन उस उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। जो कुछ लोग हैं, मैं भी मानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट से ज्यादा बात यह है कि जो है क्राफ्ट, जो जो देयर आर थियरीज ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो 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 ठीक से नहीं की जाती हैं तो तकलीफ होती है। कम से कम एक्सपेरिमेंट की बात तो बाद में आती है, पहले चीज तो हम अच्छी तरह एक एक, आप अगर हॉलीवुड, हालांकि बजट्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन राइटिंग में तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जाता है विद इन द सेम बजट्स दैट वी हैव, व्हिच इज मच लेस देन हॉलीवुड। फॉर इंस्टेंस हॉलीवुड टेलीविजन, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो इसी बिजनेस, इन्हीं बिजनेस एम्स को ध्यान में रखकर बेहतर की जा सकती है। ये है मोनिका, ठीक है? अच्छा जी। अब उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, ध्यान देना। हाँ जी। तुम्हारे बिना बागों में बहार नहीं है, कलियों में निखार नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों के नशे में डूब जाना चाहता हूं जैसे। देखा? हाँ जी। अब आप ट्राई करिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये है मोनिका। अब आंखों में आंखें डाल देखिए। शाबाश, रेडी, गो। तुम्हारे बिना जी जी है जी। नहीं जी। नहीं जी ना। चैनल एक तरह की चीज चाहती है, तो वो कई बार द चॉइस ऑफ प्रोड्यूसर इज रॉन्ग, और द चॉइस ऑफ पीपल, आई एम श्योर देयर आर, आई नो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ गुड टैलेंटेड पीपल इन हर लेवल पे लोग हैं जो अच्छी कहानियां दे सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, मास अपील भी हो सकता है, बट वो सारे लोग इकट्ठा नहीं है। कोई अच्छा डायरेक्टर एक बुरे प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा है, या एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस एक बुरी चैनल, बुरी से मेरा मतलब नॉट सो एफिशिएंट चैनल टीम के साथ डील कर रहे, तो वो सब कुछ एक साथ जब तालमेल बैठ जाता है तो अच्छे शोज निकल भी जाते हैं कभी कभी। क्या सारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुम एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो? लड़के में इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मेरे पास लोगों को भेजा धमकी देने के लिए। क्या? हाँ। अभी जाने का इधर से वापस फौरन। कभी कभी प्यार को पाने के लिए अपनों को भी खोना पड़ता है। क्या तुम चांदनी को पाने के लिए अपनों से जुदा होने को तैयार हो? अदर देन हिंदी, मराठी के लिए 4 शोज लिखे हुए हैं। फर्स्ट जो मराठी के लिए था, इट वाज कॉल्ड हा खेल सावलियांचा, व्हिच मींस द गेम ऑफ शैडोज। वो एक थोड़ा थ्रिलर सुपरनैचुरल काइंड ऑफ एक शो था। उसके लिए मुझे मटा सम्मान, महाराष्ट्र टाइम्स का एक अवार्ड होता है, आई वाज नॉमिनेटेड फॉर दैट वाज माय first nomination for any writing work as such. I'd set up
from the beginning, a show called Dilya Ghari Tu Sukhi Raha. It was about a girl who wants to study and then gets married off early in her life, and her studies get restricted. Nice, very mass appeal and with a good values. एक अच्छी story थी. जरा जरा से चांदनी जरा से ऊनही जरा से दूर स्वप्न ते जवळ असूनही जरा जरा से चांदनी जरा से ऊनही जरा से दूर स्वप्न ते जवळ असूनही. हर तरह का वैल्यू अभी भी दिखाया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्कल ही उसी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, या फेमिनिज्म फॉर इंस्टेंस. हर तरह की चीजें आ रही हैं, बट इनफ इज नॉट बीइंग डन. और जो भी थोड़ा बहुत हो भी रहा है वो भी थोड़ा सा हाफ हार्टेड सा है. जैसे हम किसी एक प्रथा पे अगर कहानी बना रहे हैं जो जो मान लीजिए सही नहीं है आज के दौर में, या कभी भी इट वाज नेवर राइट. जिस प्रथा के अगेंस्ट हमें कुछ कहना है, तो बहुत अच्छी कहानियां बनती हैं, बनी भी हैं, लेकिन उसमें फिर ये भी दिखाया जाता है साथ में, हो सकता है मार्केट कहते हैं कि प्रेशर ये है कि पीपल आर लाइकिंग इट, लोग ये पसंद कर रहे हैं, तो उस प्रथा की बुराइयां दिखाने के बहाने कहानी तो शुरू कर दी हमने, लेकिन उन बुराइयों को छिपाकर उसका पॉजिटिव साइड हम दिखाने लग जाते हैं कई बार, और वो शो चलता भी है, बहुत सालों तक चलता है. सही. फर्स्ट इज मिस्टर रमेश सिप्पी, जिन्होंने द क्लासिक शोले फिल्म बनाई थी. बहुत वेरी अर्ली इन माय करियर मुझे उनका प्रोड्यूस किया हुआ एक सिचुएशन, एक सिटकॉम कॉमेडी शो के एपिसोड्स लिखने का मौका मिला मुझे. इट वाज कॉल्ड क्या बात है. और मुझे was very awed by this gentleman, this senior director, जो he was very down to earth. मुझे बहुत अच्छी बात उनकी ये लगी, बहुत डिसिप्लिन थे एंड बहुत डाउन टू अर्थ थे, एंड वेरी शार्प अबाउट देयर हिज क्राफ्ट. जैसे एंड प्रोटोकॉल कि he although he is a very brilliant director, nobody needs a he doesn't need to explain. He's a very great director, but when he's a producer he would not interfere as a director. I mean, एक डायरेक्टर हमारे थे मिस्टर अविराज, और मिस्टर अविराज, मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था और वी यूज्ड टू नरेट इट टू रमेश जी. तो एक तो बहुत अच्छा उनका ये लगता था जब नरेशन, उन दिनों इंटरनेट नहीं था तो हम हाथ से ही स्क्रिप्ट्स लिखते थे और मैन्युस्क्रिप्ट्स ही लेके जाते थे नरेट करने का मतलब ये होता था डायरेक्टर वुड रीड इट आउट एंड he would listen. I would be there to make sure कि कुछ सब ठीक तो है, कि कुछ चेंजेस करने. Like I said, एक प्रोटोकॉल वो easily कह सकते थे, नहीं नहीं ये नहीं, इसको ऐसा नहीं वैसा करो, but his tone would be कि I think ऐसा कर ले, what do you think? It would be like a suggestion. तो मतलब I learned a lot from him that way. And the other was Mr. सूरज बड़जात्या. ये as you all know, सूरज जी has done some very big films. हमारे कॉलेज के दिनों में उनकी पहली फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, और हम भिलाई से थे, तो हमारे लिए तो इट वाज लाइक अ डिस्टेंट समथिंग, किसी और दुनिया के होते हैं फिल्म वाले. So anyway, so that was I got an opportunity to first work for him as a producer. He was a producer for a show. बहुत बहुत कमाल की, मतलब अगर 10 o'clock की मीटिंग है तो he would be there, and एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, every time he would be there 5 minutes before. बाकियों को बाद में फिर वेट भी कर. very calm, very cool-headed person despite several pressures that a producer
faces. Discipline के अलावा he treat people with so much respect and naturally so. ऐसा नहीं कि कोई fake दिखावे के लिए कि भाई he would appreciate anything, छोटी सी भी अच्छी चीज, किसी का काम अच्छा लगा, he would definitely make it a point to appreciate it. Like मैं रैंडम एग्जांपल देता हूँ, मैं तेरी परछाइयों के समय हमारे महीने 2 महीने में एक स्टोरी मीटिंग होती थी, स्टोरी दो महीने की स्टोरी डिस्कस होती थी। तब हमारा टेलीविजन में हमारी आदत ये हो चुकी थी, अब भी है, कि हमने लिख दिया, बन गया एपिसोड, टेलीकास्ट हो गया और हम भूल गए, हम आगे बढ़ गए, आगे कहानी पे ध्यान दे रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। सूरज जी का एक ये स्पेशल बात उनकी ये थी कि अगर हम मान लीजिए हमने कुछ लिखा और उनको चीज अच्छी लगी, तो उसके बाद जिस महीने मीटिंग होती थी हम भूल चुके होते हैं हमने क्या लिखा था, और मतलब याद रहता था बट आई गई बात खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ही वुड मेक इट अ पॉइंट टू से कि प्रवीण जी आपने उस एपिसोड में जो ये चीज लिखी थी बहुत अच्छी लिखी थी। आई मीन फॉर any person, I mean, creative or otherwise, who has done a certain amount of put in a certain amount of effort to create something, इस तरह का appreciation मिलना is actually actually more than the money that you get paid, and coming from a person of that stature. Friends के लिए who were getting opportunities as to direct a film, उनके लिए एक एक्चुअली 2 फिल्में मेरी लिख के रिलीज हुई हैं। एक में आई वाज द ओन सोल राइटर, इट वाज कॉल्ड अवगत, इट डिड नॉट डू वेल, इट वाज अ वेरी स्मॉल फिल्म फॉर अ फ्रेंड नेम्ड मोहन शर्मा हु वाज द डायरेक्टर। Then a slightly more popular film, slightly more popular I would say, was a comedy film called Fantoosh. It was a time travel comedy with some new actors and Mr. Paresh Rawal in the lead role. Um, it did fairly okay, and but I was not the sole writer of that movie. उसमें 2 writers और थे। इस काल के बंधन से मुक्त हैं, परे हैं, वो समय काल से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो 100 वर्ष पूर्व भी जा सकते हैं और 200 वर्ष पश्चात भी पहुंच सकते हैं। शिष्यों, एक्सक्यूज मी, कैसा है? इधर से बांद्रा जाने का बस कहां से मिलेगा? अपन का कोई मिस्टेक हुआ क्या? अपन तो खाली बांद्रा जाने के लिए बस के बारे में पूछ रहा था। ये अरे शिशु, क्यों भाग रहा है यार? अरे सुनो, रेड पड़ा क्या? अरे मुझे भी, अरे मुझे भी तो ले चलो। अरे मैं तो चल भी नहीं सकता। लगता है बिना परमिशन के स्पीच दे रहा था। अरे मुझे ले चलो, उठा लो मुझे, उठा लो ले चलो। अरे उधर नहीं, इधर। I can say most people work for the money, other than of course the fact that some of them enjoy the process of writing and want to make good television content. There is money as of today. Definitely, there is a lot of money in television. Writers get paid a lot. I think some of us get paid more than what we deserve. It's only of late that I've got the luxury of thinking of doing something other than making money from television. नॉवेल लिखने की कोशिश की एक इंग्लिश में, it's the first draft is ready, but the thing is I've not pushed it, really not tried hard to get it published. वो चूंकि टेलीविजन की आदत लगी हुई है कि डेडलाइन है, तो writing a book was not an easy thing. Self-induced discipline, because nobody is waiting to see the complete book. तो मुझे ही वो करना पड़ा। तो first draft is ready. Actually, it's not even completely polished and ready. So I also tried. I may not pursue it, but I thought of creating a graphic novel at one point in time. So when I was small, when I was in school, I used to make comics. My favorite action hero was the Indian character Bahadur. I would try to
make more stories of Bahadur using full-scale size paper and then black and white with pencil. And yeah, sadly I have not been able to retain or preserve any of those. But वो था कीड़ा जिसको कहते हैं, करने की इच्छा थी. Then I saw recently of late कुछ 5-6 सालों से जो एक graphic novels का trend तो नहीं, लेकिन people are doing good work even in India. हालांकि आई एम नॉट श्योर अबाउट द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, बट उनको देख के लगा कि मुझे भी करना चाहिए. बट इट पोएट्री ऐसी बहुत पर्सनल चीज होती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो. कुछ थॉट्स हैं, कुछ अंदर, लाइक मोस्ट पीपल वुड हैव देयर ओन. मेरी नेगेटिव एनर्जी को बाहर, द कंप्लेंट्स दैट आई हैव विद सोसाइटी, विद पीपल, विद वैल्यूज एंड उस तरह की चीजों पर ओवर द इयर्स कुछ मैंने कॉलेज के दिनों में कभी लिखी थी. बहुत कुछ आप पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग के जरिए या बहुत बहुत, पर मुझे वो किताब के फॉर्म में किताब को छूने, उनके उसके पन्ने छूने का एक फीलिंग, उसमें अपना नाम छपा देखना, इसकी बड़ी इच्छा थी. तो मैंने ही I paid from my own pocket. I found a publisher who was willing to publish it, और मैंने काफी दोस्तों, कॉलीग्स, इंडस्ट्री, टीवी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त या पुराने पर्सनल फ्रेंड्स, सबको मैंने वो बांटी है. एक भी मेरे ख्याल से किताब बिकी नहीं है. हालांकि हाँ, एक मेरी मंगोली सिस्टर है, उन्होंने कहा है कि वो बेचेंगी 2 कॉपीज, तो उनको छोड़ने तो I don't think I have sold any copy. दुनियादारी या बहुत सी डिफरेंट रीजंस की वजह से हम वो उस इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं और एक भेड़ की चाल में हम लग जाते हैं किसी वजह से. कभी कमर्शियल रीजन पर, लाइवलीहुड रीजंस, जीने के लिए या समाज को दिखाने के लिए, या ताकि हमको अलग ना किया जाए, डिफरेंट रीजन. तो उसमें वो इंडिविजुअलिटी खो जाती है. तो उसके बारे में मैंने ये लिखा था कि जब अकेला शब्द था, पाबंदियों से मुक्त था वो, जैसे बेसरहद हवा. बनना चाहा था किसी दिन अपने ही जैसों को चुन चुन, मिल के कोई फलसफा. पर न कोई मिल सका तो सब्र वो ना कर सका, और लक्ष्य से वो मुड़ गया. अर्थ अपना भूल कर यूं ही लपक कर एक निरर्थक वाक्य से वो जुड़ गया. होड़ में पाने की सब कुछ भीड़ में शब्दों की, अब वो एक पल में भूल गया. अनगिनत वाक्यों ने मिलकर पृष्ठ पोथी वाचनालय में उसे ओझल किया. सर पे उसको छत मिली, अब ढेरों की संगत मिली, पर उड़ न पाया फिर कभी. व्याकरण की हद में रहकर पृष्ठ की सरहद में बंधकर घुट रही थी सांस भी. भेड़ की इस चाल में, यूं इस भरे जंजाल में, काहे वो आकर फंस गया. वो तो शोला था भड़कता, कौन सी एक बूंद भर से कैसे डर के बुझ गया. भूल थी यूं सबसे जुड़ना, जैसे मानो उसका अपना एक अक्षर कम हुआ. खो गया सब फलसफा, बस रह गया कागज पे धब्बा, जो अहम से हम हुआ. जब अकेला शब्द था, पाबंदियों से मुक्त था वो, जैसे बेसरहद हवा. शान से पी ले, शान से जी ले, शान से पी ले, शान से जी ले, घूम नशे में घूम 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 झूम, बराबर झूम चला झूम बराबर झूम. आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले. इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ.